Hello students, the next topic is Introduction to Trigonometry, chapter 8, and in this chapter first of all we will discuss trigonometric ratios. So before discussing the trigonometric ratios, what is the trigonometry? So the word trigonometry is here. Tri means three. Gone means sides, and metron means measure. That is, if we have given any triangle, let us suppose this is the given triangle, then trigonometry means simply the interrelation between the angle and three sides. So, let the triangle be ABC, and this triangle is a right angle at the angle B. Then angle A and angle C both will be acute angle. So in the given right angle triangle, first of all, we will define the trigonometric ratios, and the trigonometric ratios are nothing but simply the ratio of any two sides. So, which particular two sides ratio in term of trigonometric functions, how we will define? So, there are basically 6 trigonometric functions we will discuss in this chapter. So let us start. The first trigonometric ratio is for the given angle. Let us suppose if we are going to consider this angle C, then the trigonometric ratios for the angle C, that is the first function, is sine of angle C. Sine of angle C, that is sine C. This is represented as sine C. Second trigonometric function is cosine of angle C, that is simply written as cos of C. Then third trigonometric function is tangent of angle C, that is simply written as tan C. Then fourth one is cotangent of angle C, that is simply written as cot C. Then fifth is secant of angle C, and it is written as simply sec of C. Then sixth one is cosecant of angle C, and that is written as in simplest form cosec C. So basically there are 6 trigonometric ratios. First, for the angle C is sin C, then second one is cos C, then third one is tan C, then fourth one is cot C, fifth one is the sec C, and sixth one is the cosec C. Now, what is the sin C? Sin C is basically the ratio of, in the given triangle for the angle C is perpendicular upon hypotenuse. So, for the given angle C, the opposite side will be always termed as the perpendicular, longest will be the hypotenuse, and remaining will be the base. So if you have to find the trigonometric ratio sine for the angle C, then sine C will be perpendicular upon hypotenuse. So here perpendicular is your AB and hypotenuse is AC. Similarly, cosines of C, that is cos C, is defined as base upon hypotenuse. So base upon hypotenuse, that is BC upon AC. Then tan of C will be defined as perpendicular upon base. So perpendicular upon base, that is AB upon BC. Then cot C is always reciprocal of tan C. So it will be base upon perpendicular, that is BC upon AB.
Then sec C will be the reciprocal of cos C, that is h upon b. So h means hypotenuse upon base. So hypotenuse is AC and base is your BC. And the last cosec C will be the just reciprocal of sin C. So it will be h upon p. So it will be equals to AC upon AB. So these are the first 6 trigonometric ratios for the angle C in the given right angle triangle ABC. Now similarly we can define these functions for the angle A also. So first pause the video and note down, then we will discuss for the angle A. Now for the given triangle ABC, if we have to define the trigonometric ratio for the angle A, that is acute angle A, then the opposite side to the angle A will be BC and this will be considered as perpendicular. Base will be AB and the longest will be hypotenuse. So again for the angle A, if we have to define the all 6 trigonometric functions, then what will be the ratios of each trigonometric ratio? So first sine A, then second cos A, then third tan A, then fourth cot A, then fifth sec of A, and then sixth will be cosec of A. These 6 trigonometric ratios again we have to find out. Here one more trick I will let you know here how we will remember that which trigonometric function will represent which particular two sides ratio. So one very funny formula you have to learn, that is Pandit Badri Prasad Har Bol. So this one is very funny formula to remember this trigonometric function on the basis of experience. So पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल को अपन कैसे याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए? पंडित बद्री प्रसाद हर बोल में दिस पंडित अपॉन हर, दिस इज रिप्रेजेंट साइन, then this prasad upon her is represent cos, and then वापिस पंडित बद्री प्रसाद, then prasad upon बोल this represent tan. So पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में फर्स्ट p अपॉन h साइन को बताएगा, b अपॉन h हमेशा कोसाइंस फंक्शन को बताएगा, p अपॉन b हमेशा tan को बताएगा। और जैसा अपन ने डिस्कस किया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, सो कोसेक h अपॉन b रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, न्यूमरेटर से देखेंगे तो इस प्रकार से, डिनोमिनेटर से देखेंगे तो इस फॉर्म में। सो h अपॉन p विल बी कोसेक, देन कोसेक के बाद ये आपका सेक को बताएगा, h अपॉन b सेक होगा और b अपॉन p आपका कोट होगा। सो साइन a किसके बराबर होगा? p अपॉन h। अब देखिए हमने गिवन ट्राइंगल a के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने हैं और जिस एंगल के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ इस गिवन ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपका BC हो गया, एडजॉइनिंग साइड दैट इज AB आपका बेस हो गया, लॉन्गेस्ट हमेशा हाइपोटेनस होगा। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस साइन A की अगर मुझे वैल्यू निकालनी तो साइन A किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर, बिकॉज एंगल A के लिए डिफाइन कर रहे हैं और जिस एंगल के लिए डिफाइन कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लॉन्गेस्ट हाइपोटेनस होगा, तो बचा हुआ आपका AB बेस हो जाएगा। नाउ परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेनस क्या है आपका? AC। सो दिस इज द साइन A। वन मोर थिंग, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ये कहता हूं कि परपेंडिकुलर आपका 3 सेंटीमीटर है, बेस आपका 4 सेंटीमीटर है,
then this hypotenuse will be 5 centimeter होगा because 3 4 5 is the Pythagorean triplet. Just to explain के लिए, so sin A किसके बराबर हो जाएगा, BC फॉर्मूले से P अपॉन H, और गिवन ट्रायंगल में P अपॉन H क्या है, BC अपॉन AC है ना। BC का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 3 और AC का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, सो sin A किसके बराबर हुआ 3 upon 5. Now what is 3 upon 5? 3 upon 5 is a rational number. So this trigonometric ratio sin A can be associated with a rational number. And rational number क्या होगा, कोई रियल नंबर है. So trigonometric function क्या है, trigonometric function basically given right angle triangle में जो 3 साइड हैं और जो 3 एंगल है उसमें से किसी एक एंगल का किन्हीं 2 साइड के साथ जो इंटर रिलेशन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. नाउ cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos A किसके बराबर है, फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल देखो B अपॉन H. तो B का मतलब बेस एंड H का मतलब हाइपोटेनस. अब गिवन ट्रायंगल में बेस क्या है आपका, बेस आपका AB है, हाइपोटेनस आपका AC है. AB कितना दे रखा है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5. सो दिस cos A किसके बराबर आया 4 अपॉन 5. नाउ व्हाट इज 4 अपॉन 5, ये आपको बहुत बेसिक चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूरा चैप्टर क्या 3 क्लास पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्या है. Trigonometric ratios is nothing but simply ratio of any two side in the given triangle और किन्हीं भी 2 साइड का रेशो. एक पर्टिकुलर रेशो एक पर्टिकुलर फंक्शन से डिफाइन है. जैसा आपने बताया कि sin A किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फिक्स है. ऐसे ही cos A किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के. अब बेस क्या है AB है, हाइपोटेनस क्या है AC है. अब अगर आपका बेस AB 4 दे रखा है, हाइपोटेनस 5 है, तो 4 अपॉन 5 आपका क्या है cos A है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लॉन्गेस्ट आपकी हाइपोटेनस होगी, बची जो वैसे ही बेस होगी. ठीक है. सो दिस टाइप वी कैन डिफाइन cos A, जिसको अपन एब्रिविएशन में cos लिख रहे हैं, अदरवाइज कोसाइंस A. सिमिलरली टेंजेंट A मींस tan A. tan A किसके बराबर होता है, tan A होता है देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा, बार बार बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो. ठीक है. दूसरा एक और फनी जोक है जो आप दूसरा तरीके से पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. फिर से बता रहा देखो, पाकिस्तान हमें से बार बार हमने से अपने देश पे आक्रमण करने की कोशिश करता है ना, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी डराने की कोशिश करता है, और फिर अपन हर बार उसको मुंहतोड़ जवाब दे देते, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते, फिर होता रहता है, कई दिन होता है. इसलिए पाकिस्तान के ऊपर भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक फनी जोक है, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. देखो पाकिस्तान जो हमारे देश का एक टुकड़ा था जो हमारे से अलग हो गया है, अपनी जिद से अलग हुआ, हमने उसको अलग नहीं किया है, उसके ऊपर भी हमने जोक बनाया कि बेचारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भूखा और प्यासा, और हिंदुस्तान कैसा है, हरा और भरा है. हरा हिंदुस्तान, हरा और भरा. तो पहला किसको बताएगा, साइन को, दूसरा बताएगा कोस को, तीसरा बताएगा टेन को. न्यूमरेटर से काउंट करेंगे और डिनोमिनेटर से काउंट करेंगे तो ये कोसेक को, ये सेक को और ये आपका कोट को. इस तरीके से आपको याद करना. तो चलिए आ जाते हैं tan A किसके बराबर होगा, देखो P अपॉन B. अब देखो गिवन ट्रायंगल में P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कितना है बेटे BC और बेस कितना है AB है. अब BC अपॉन AB का जो रेशो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट फॉर एंगल A होगा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है क्या होगा, टेंजेंट A. एंगल A के लिए टेंजेंट A किसके बराबर होगा, BC अपॉन AB. BC कितना है 4, AB कितना दे रखा है, देखो BC तो आपका कितना है 3 है और AB दे रखा है आपको 4, तो 3 अपॉन 4 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
यानी कि 3/4 का जो रेशो है वो किसको बता रहा है, tan ऑफ a को। ठीक है, अब याद रखना आपको कोट a, देखो tan का उल्टा, देखो tan है p/b, इसका उल्टा b/p, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है बेटे, बेस आपका AB हो गया और परपेंडिकुलर BC हो गया, उल्टा कर दीजिए 4/3, 4/3 क्या, अगेन दो साइड का रेशो है। देन सेक ये किसके बराबर होता है, सेक होता है, देखो ये है आपका साइन, ये है आपका कोस, ये है आपका टेन, ये है आपका कोसेक, ये है आपका सेक और ये है आपका कोट। तो सेक किसके बराबर होता है, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा का मतलब h/b, तो यहां लिख देंगे अपन h/b। h कितना है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका AC है, बेस कितना है AB है। अब देखो AC की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, AB की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, तो 5/4, देखो यहां से भी देख सकते कोस का उल्टा ये 4/5 था, ये 5/4 हो गया, tan 3/4 था, ये 4/3 हो गया। अब लास्ट कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है बेटे, कोसेक उल्टा होता है साइन का। साइन क्या है, P/H, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H/P, दैट इज H/P। H का मतलब हाइपोटेनस, P का मतलब परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेनस कितना है बेटे गिवन ट्रायंगल में, हाइपोटेनस AC है, परपेंडिकुलर आपका BC है। AC का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और BC का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। अब देखो यहाँ 3/5 था, ये 5/3 हो गया। तो ये नेक्स्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसके लिए, एंगल A के लिए। फिर से बता रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर लिखेंगे, लॉन्गेस्ट को हाइपोटेनस लिखेंगे, रिमेनिंग आपकी बेस होगी। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट से या पाइथागोरस थ्योरम को यूज लेके इन तीन साइड में से दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे, आप जानते हैं छोटी क्लास में पढ़ा ना हमने, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस। इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी, लेट अस सपोज अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना तो क्या होगा, हाइपोटेनस माइनस बेस, b को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, फिर p की वैल्यू कैसे निकालूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, राइट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, h² माइनस b², इस तरीके से मैं p निकाल लूंगा। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीन साइड में से दो दे रखी तो थर्ड साइड अपन पहले निकाल लेंगे। जिस एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, उस एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानना है, लॉन्गेस्ट हाइपोटेनस, बची हुई बेस। ठीक है, और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए 10 से लेकर 12 तक यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको सबसे पहले याद रखना, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और सिक्स कोसेक। जिस एंगल के लिए निकालना उस एंगल को लिखना है। और याद रखने का सबसे स्ट्रिक्ट तरीका, बहुत ही फनी फॉर्मूला मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस बेसिस पे, कि पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, एक पंडित है बद्री प्रसाद जिसका नाम है, जो किसी मंदिर में हर हर बोलता है, उससे हम बोल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद कर लेंगे। देखो PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस टेन और उल्टा टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। इस प्रकार से आप लिख ले। और जिसको ये फॉर्मूला फनी अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा याद कर ले। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। फिर से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन, कॉट सेक और कोसेक। साइन की वैल्यू निकालनी तो ऊपर से P/H, कोस की वैल्यू निकालनी तो B/H, टेन की वैल्यू तो P/B, कोसेक की निकालनी तो H/P, सेक की निकालनी है तो H/B, कोट की निकालनी तो B/B। और दूसरा क्या याद रखना, साइन ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, दैट इज साइन A किसके बराबर हो जाएगा, 1/कोसेक के, पहला इंट्रा रिलेशन। दूसरा कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस A होगा 1/sec A के, ये दूसरा इंट्रा रिलेशन। और तीसरा टेन किसका उल्टा होता है बेटे, टेन ऑफ A उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा कोट के, दैट इज 1/cot A के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन A/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कोसेक की अगर वैल्यू साइन की टर्म में लिखनी है तो कोसेक A किसके बराबर लिखेंगे, 1/sin A के।
वैसे ही यहाँ पे सेक ए की वैल्यू अगर कोस की वैल्यू टर्म में लिखनी है तो 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो tan a अपॉन 1 लिख करके कोट की वैल्यू अगर tan की टर्म में लिखनी है तो 1 अपॉन tan a। इन ऑल 6 रिलेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, दैट इज साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए के होता है। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन ए के, ऐसे कोस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक ए और सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस ए। tan ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोट ए और कोट का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan ए। मतलब चले एक और चीज यहां देख लेते हैं कि अगर मैं sin a अपॉन 1 किसके बराबर लिखूंगा 1 अपॉन कोसेक ए, तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके सामने 6 रिलेशन से आपको 3 और रिलेशन देखिए। फर्स्ट से साइन ए किसके बराबर 1 अपॉन कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए इनटू कोसेक ए किसके बराबर होगा 1 into 1। तो एक और इंट्रा रिलेशन आपके पास फॉर्मूला आ गया कि साइन ए इनटू कोसेक ए किसके बराबर होता है बेटे 1 के बराबर। दूसरा कोस इनटू सेक को मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा एक और रिलेशन आपके पास आ गया कॉस ऑफ ए इनटू सेक ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तीसरा इंटर रिलेशन क्या tan a किसके बराबर 1 अपॉन कोट के, तो मैं अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो tan ऑफ a इनटू cot ऑफ a विल बी इक्वल्स टू आल्सो 1। सो पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने डिफाइन किया किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। फिर हमने उन ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन से दो फंक्शन है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल उसके बारे में पढ़ा कि sin a किसके बराबर होता है 1 अपॉन cosec के, cos a किसके बराबर होता है 1 अपॉन sec a के, tan a किसके बराबर 1 अपॉन cot a के। इसका मतलब sin रेसिप्रोकल है cosec का, cos रेसिप्रोकल है sec का, tan रेसिप्रोकल है cot का। अब इनको इन रिलेशन से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देखो sin a अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन cosec a, तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो sin इनटू cos a के बराबर 1, cos a इनटू sec के बराबर 1, tan a इनटू cot a बराबर 1। दीज आर द यूनिवर्सल लॉज है, चाहे आप अमेरिका जाए, चाहे ब्रिटेन जाए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू एवरीवेयर यही रहेगी। So it was about the introduction to trigonometry, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए हैं, उनको समझा है, उनके फॉर्मूलेज को हम कैसे याद करेंगे वो फनी जोक भी हमने आपको बताया है, और इनका इंट्रा रिलेशन क्या है ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it.